Okay, I will start now. Previous class we have seen fringe width. Do you remember the formula of fringe width? What is the fringe width? Bright and dark fringes की width का formula क्या है? Beta is equal to lambda d by d. है ना? Fringe width कहाँ से निकाली थी हमने? Location of bright and dark fringes. उनको subtract करके we got this fringe width. All right. तो bright and dark fringes are equally spaced. Equal width होती दोनों की, है ना? और किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। और डी पर डिपेंड करती है। डी क्या होता है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन। एंड आल्सो स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज और टू स्लिट्स। ठीक है, तो वी हैव दीज थ्री टर्म्स, है ना? तो स्पेनोमेकर्स वी हैव बीन डूइंग। वेवलेंथ जो है it is changing in the other medium. Suppose we do the experiment in the water, the wavelength will be decreasing by the factor refractive index of water. All right, so wavelength will change in the experiment if it is done in the water. These two things doesn't change, they are the geometrical distances, है ना? wavelength जो है refractive index पर depend करती है, तो वो कम हो जाती है wavelength, therefore फ्रिंजेस श्रिंक हो जाती है पानी में, है ना? मीन्स नैरो हो जाती है वो, दे बिकम नैरो इन द वाटर। ऑलराइट, इन एनी अदर मीडियम बिकॉज वेवलेंथ विल डिक्रीज बाय दैट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना? तो ये दिस क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस अगेन। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। गो थ्रू द क्वेश्चन। इन Young's double slit experiment, 12 fringes are obtained, observed to be formed on the certain segment of the screen when light of wavelength is 600 nanometer. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed. So just I want to explain you again this. Suppose this is the screen here on which fringes are formed, है ना? So this is the segment. In this segment we have the number of fringes formed like this, and intensity changes like this. Okay, so suppose when we use 600 nanometer, that time for 600 nanometer N1 fringes are formed in that segment. Okay, this I am just, this explanation is not I am not this explanation is not proper the way I explained you last time. y1 is equal to y2 से मैंने explain किया था कि यहाँ ये y1 for one wavelength, y2 for other wavelength. So almost it is similar to that, but it is more proper explanation is in the terms of fringe width. Answer remains same. इसको मैं remove कर रहा हूँ. देखो, तो this segment remaining same for both the wavelength. So suppose in first case when wavelength is 600, in that case lambda 1 fringes are formed. In first case, I mean N1 fringes are formed. N1 fringes are formed, each of width beta 1. In second case, N2 fringes are formed when the wavelength is how much? 400 nanometer. 400 nanometer में N2 fringes are formed. So N2 is formed, their width will be different. B2 हो जाएगी उनकी fringe width. तो N1 fringe width का formula क्या है? lambda 1 d by d, N2 lambda 2 d by d. D by d are the geometrical distances. They will not change in the when the fringe width is changed. I mean wavelength is changed. ये change हो गई. Number of fringes will get changed. N1.
कितनी है? फर्स्ट केस में 12 फ्रिंजेस आर देयर, wavelength is 600, N2 we have to find out, wavelength is 400. If you solve it, N2 will be coming 18. When wavelength decreases, number of fringes increases, है ना? Wavelength कम हो गई तो fringe width narrow हो गई, more number of fringes are included in that segment of the screen. Clear? So this is important question, but even for boards examination, ये boards के लिए fit question है. Very easily it can be asked. ठीक है? So this you can note down and mark it important question. Noted? Okay, we'll see further. इसका आंसर आ गया था. This was given in homework. What is the answer coming? 4 आएगा जगह, ये आंसर आएगा. 4i. 4 IN. Okay. B आंसर आएगा. I give you the method to do this, है ना? ये फार्मूले से निकाल सकते हैं. फर्स्ट केस में π/2 दिया, सेकंड केस में पाई दिया, डिफरेंस निकालना है उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का. I1 is I and I2 is 4i. यूज दिस फार्मूला. ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला याद है तुम लोगों को? Resultant intensity at any point on the screen is given by this relation. Intensity of the first wave, intensity of second wave, plus 2 root I1 I2 cos phi. Cos phi कैसे निकालते हैं? अगर पार्ट डिफरेंस दिया है तो phi कैसे निकालेंगे? पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस का फार्मूला याद है तुम लोगों को? 2 pi by lambda into x. This is the relation to get the phi if x is given. X is the part difference. X is the part difference. All right. So this is also the important question. उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में पढ़ लिया था, है ना? लीनियर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर नहीं, वाटर में बताया था मैंने. रिफ्रैक्ट लैम्डा कम हो जाता है वाटर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4, आई मीन 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा. वेवलेंथ विल बी 3/4, तो फ्रिंज विड्थ आल्सो बी 3/4. दिस वाज डन. एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या करते हैं? कैपिटल डी से डिवाइड कर देते हैं फ्रिंज विड्थ को, लैम्डा बाई डी बचता है, दैट इज इन रेडियन, है ना? जैसे ये क्वेश्चन था डिग्री में दिया था तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करके फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ के फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. आंसर अपना मीटर में आ जाएगा, उसको फिर मीटर में ही छोड़ सकते हैं. अगर नैनोमीटर में अगर ऑप्शन दिए तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये भी क्वेश्चन देखो था, इसमें भी वही था. वाटर में डाला तो एयर में फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्री, वाटर में 4/3 टाइम्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगी. तो ये आया था, देखो लास्ट में ये रिजल्ट आया था. यू कैन इजीली रिमेंबर डायरेक्टली. 0.15 आ गई थी इसका आंसर.
क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। एंड ये भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने. This was also done. Second part was also done, which was slightly different part. And ये डिस्कस हो गए थे कि सेंटर में जो है इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है. इंडिविजुअल अगर 2 है, सेंटर में और बाकी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी होती है. रीडिस्ट्रीब्यूशन से ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स 4 टाइम्स ब्राइटर देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव. All right. तो ये सब क्वेश्चन we have done. Today we are going to see the Doppler's effect. Interference is almost done. ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने. मिसिंग वेवलेंथ मतलब क्या होता है? मिसिंग वेवलेंथ मीन्स इट इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो एक दो पॉइंट हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो न्यूमेरिकल में तुम्हें डायरेक्टली काम आ सकते हैं कहीं पर. जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि how much time the wave will take to cross the glass slab. ग्लास स्लैब में वेव कितने टाइम में क्रॉस करेगी. तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस इनटू स्पीड. ग्लास में स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तो जो थिकनेस दी होगी टी वो पुट कर देंगे. स्पीड कितनी होगी ग्लास में? सी बाई एन हो जाएगा, है ना. तो टाइम टू क्रॉस द लाइट इन द ग्लास प्लेट ऑफ सर्टेन थिकनेस. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल लेंगे. दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सपोज एक वन वेव इज क्रॉसिंग द ग्लास प्लेट, अदर इज गोइंग इन द वैक्यूम. हाउ मच पाथ डिफरेंस विल बी जनरेटेड in both are entering both are simultaneous. Suppose two beams are moving, one has to go to vacuum, other has to pass through the medium of different refractive index. path difference कितना create होगा देखो. तो suppose t the thickness of the glass slab, n is the refractive index. Consider two light rays, one in glass slab and second in vacuum. ये वाली vacuum में x will be the path difference which will be equal to, suppose इसने जितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंच गई, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 will be equal to थिकनेस t के बराबर हो जाएगा. जितनी देर में उसने x1 ट्रेवल किया उतनी देर में इसने x2 ट्रेवल कर लिया. वैक्यूम में ज्यादा ट्रेवल करेगा, h2 माइनस x1. तो x2 जो है, x1 ऑफ कोर्स विल बी थिकनेस. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रूफ में नहीं कर रहा, प्रूफ में बता देता हूँ, बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. पाथ डिफरेंस कम्स टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब माइनस 1 इंटू थिकनेस. उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से 1 माइनस कर दो और थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, तो ये पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है इफ द वन वेव इज गोइंग इन वैक्यूम, अदर वेव इज गोइंग इन द डेंसर मीडियम. कैलकुलेट करने के लिए देखो x1 इज द ये we can skip it, but सुन लो केवल, जितने टाइम में ये यहाँ पहुंचती है वो टाइम, उतने टाइम में ये कितना क्रॉस कर जाएगी वो निकाल के दोनों माइनस कर देते हैं, है ना. टाइम जो मैंने बताया, टाइम कैसे निकलते हैं? डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल देते हैं. ठीक है. तो ये पार्ट डिफरेंस, इतना पार्ट डिफरेंस डेवलप होता है अगर वेव जो है कोई डेंसर मीडियम से होके जाए और दूसरी वेव वैक्यूम से होके जाए. तो दिस कैन बी यूज्ड इन नेक्स्ट टॉपिक विच इज आल्सो एक्स्ट्रा टॉपिक. ठीक है. प्रूफ इसका छोड़ सकते हो तुम, एज ए क्वेश्चन कभी आया तो इसको यूज कर सकते हो तुम. ठीक है. प्रूफ आई कैन टेल यू, जस्ट सुन लो केवल. लेट टाइम टेकन टू क्रॉस द ग्लास स्लैब इज t0.
तो डिस्टेंस कितना होगा, x1 कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ग्लास में कितनी होती है, c/n होती है वैक्यूम में, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट x1 जो है t है, x1 की वैल्यू t है, जितना थिकनेस है उतना ही x1 है उसका पाथ। तो x1 की वैल्यू t पुट कर दी, तो टाइम आ गया, टाइम टू क्रॉस इज थिकनेस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन c। और इतने टाइम में ये वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस इन वैक्यूम इन सेम टाइम x2 विल बी c इंटू टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, c कैंसिल हो गया, n टाइम्स ऑफ t। तो यहाँ पर इसकी जगह एन टी पुट कर दिया, और ये तो टी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होके n-1 इंटू टी आ जाता है। ओके, नीचे लिखा है देखो यहाँ पर। तो प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, x2 की वैल्यू एन टी आ गई है, x1 इज इक्वल टू थिकनेस, तो ये आ गया। तो ये जस्ट यू कैन जस्ट स्किप, आई डोंट वांट यू जस्ट बर्डन यू विद एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। इस पॉइंट को यूज करके कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, अगेन दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा, सीबीएसई स्टूडेंट विल जस्ट स्किप, इसको छोड़ देंगे, बट जस्ट 2 मिनट्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, किसके लिए, जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू ट्रांसपेरेंट स्लैब, अगर हमने किसी स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट रख दी, तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है उस तरफ। कितना शिफ्ट होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू n-1, जो अभी पाथ डिफरेंस आया था ना, उतना इंटू डी बाई डी, दिस मच इट शिफ्ट्स। तो यहाँ पे लेट मी रीड, if transparent slab of thickness t and diffractive index n is placed in front of one slit, then complete fringe pattern shifts toward the slab side by this much. इसका प्रूफ अगेन we will skip it, है ना। तो towards that side, because क्या होता है, इसकी वजह से पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट होता है। तो और से सेंट्रल ब्राइट कहाँ पे बनती है, जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है ना, तो ये यहाँ कहीं पर आके दोनों का पाथ डिफरेंस सेंटर ब्राइट बनती, पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय द स्लैब, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट दैट साइड, ऑल द फ्रिंज, पूरी फ्रिंजेस टुवर्ड द साइड ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाए। फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज, फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज, बीटा सेम रहेगी। फ्रिंज विड्थ जितनी कितनी होती, लैम्डा डी बाई डी, उसका कोई रोल नहीं होगा। कितनी फ्रिंजेस ऊपर चली जाएंगी, टोटल शिफ्ट डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ, एक टोटल शिफ्ट हमें पता लग जाए और फ्रिंज विड्थ कितना होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द सेंटर और एनी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। तो यू हैव टू रिमेंबर इन एनी केस, ये याद रखना है फ्रिंज शिफ्ट कितना होता है। इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा ज्यादा। देखो, जस्ट यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला, एमएससीटी के कोर्स में भी है ये, इफ यू आर गोइंग फॉर एमएससीटी स्टेट बोर्ड के कोर्स में है, तो इट विल बी यूजफुल। देखो, जैसे ये फार्मूला नोट कर लिया, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, in the ideal double slit experiment when the glass plate of reflectiveness 1.5 thickness t is introduced in the path of one of the interfering beams, the intensity at position where the central maximum occurs previously remains unchanged. देखो, यहाँ पर डायग्राम से समझो, देखो यहाँ पे स्लिट्स है सपोज, और सेंटर में सेंटर ब्राइट बनती है ना, उसके नीचे क्या बनेगी, सपोज यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब पुट कर दिया, नीचे क्या बनती है, डार्क वन, फिर ब्राइट वन, ऊपर भी ऐसा ही रहता है। तो अभी फ्रिंज पैटर्न पूरा शिफ्ट हो जाए यहाँ से,
ऊपर की तरफ इधर इधर शिफ्ट होगा। तो सेंटर ब्राइट तो सपोज यहाँ पे आ गया, तो बोला है कि जो सेंटर था वहां पे फिर से ब्राइट ही रहे, फुल्ली ब्राइट रहे। तो ब्राइट 1 जब यहाँ पहुंच जाएगा, पहले डार्क 1 पहुंचेगा तो ये डार्क हो जाएगा, तो ब्राइट 1 पहुंच जाएगा, यहाँ पर ब्राइट 1 हो जाए। एक ब्राइट 1 आने के लिए पूरी फ्रिंज, एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाए, बिकॉज ब्राइट, इफ यू सी द फ्रिंज पैटर्न, तो एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच के फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो शिफ्ट शुड बी ऑफ वन फ्रिंज विड्थ, मिनिमम बोला, मिनिमम है ना, मिनिमम के लिए एटलीस्ट 1 फ्रिंज शुड बी शिफ्टिंग। फॉर मिनिमम shift, for minimum thickness, fringe shift should be, for minimum thickness, shift should be equal to 1 fringe width. 1 fringe कितनी होती? लैम्डा डी बाई डी। शिफ्ट कितना होता है? n-1 t डी बाई डी। तो डी बाई डी तो कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया। पुट 1.5 -1 इंटू टी इंटू लैम्डा। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.5 t इज इक्वल टू लैम्डा, तो थिकनेस आ जाएगी 2 लैम्डा। 0.5 मीन्स 1/2, 2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये आंसर ए ऑप्शन है। तो अगर बोला जाता कि नहीं सेंटर ब्राइट है वहां पे डार्क हो जाए, तो डार्क 1 यहाँ पे पहुंचना चाहिए। डार्क 1 कितनी डिस्टेंस होता है? हाफ फ्रिंज विड्थ पर होता है। तो हाफ फ्रिंज विड्थ का शिफ्ट अगर डार्क हो जाए तो 1/2 बीटा लिखेंगे शिफ्ट। शिफ्ट शुड बी इक्वल टू हाफ फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तब लैम्डा आंसर आएगा। अगर सेंटर ब्राइट हैज टू बी dark completely, then half fringe width should shift. minimum उससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम थिकनेस के लिए एटलीस्ट हाफ फ्रिंज width should shift. ठीक है, तो दिस इज द extra question not for board CBSE board. So now we'll just move on to the NCERT book topics. ठीक है, तो देखो, now Doppler effects in light. So this topic is there NCERT book में. Short questions or numericals can be asked in this short. So as we have seen Doppler effect in sound, similar to that Doppler effect in light. Doppler effect की uses पता है तुम लोग को? Do you know? Doppler effect is used in finding the locations of the aeroplane, the speed of the traffic, speed of the vehicles, in fact speed of the cricket ball, tennis ball and all, they are done by the Doppler's effect of light. And also we can find out whether the particular galaxy is moving away from the earth or approaching to earth by seeing the color shift in its light over the period of months. तो देखते क्या डॉप्लर्स ने क्या सजेस्ट, कैसे क्या रूल दिया था? Doppler effect in light, suppose if source moves away from the observer, then wavefront have to travel larger distances, है ना? सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वर है, सोर्स दूर जा रहा है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट उसने रिलीज किया वो यहाँ पहुंचेगा, फिर दूसरा वेव फ्रंट जब रिलीज करेगा तब तक ये सोर्स थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, तो दूसरा वेव फ्रंट जो है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा इसके पास एज कंपेयर टू एक्चुअल टाइम डिफरेंस. So they have to travel larger distance to reach the observer. Time taken between the arrival of two successive wavefront is greater in that case. Greater that it is at source. Source जो दो wavefront रिलीज कर रहा है, जो दो ड्यूरेशन का, उससे ज्यादा ड्यूरेशन का गैप ऑब्जर्वर पर पहुंचेगा जब सोर्स दूर जा रहा है. तो दो सक्सेसिव वेवफ्रंट के बीच का टाइम इंटरवल बढ़ गया,
तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना। Therefore frequency received by observer is smaller. This is known as a Doppler effect. फ्रीक्वेंसी जो चेंज फ्रीक्वेंसी मिलती है, स्मॉलर या लार्जर डिपेंडिंग अपॉन in which direction the source is moving. The change frequency received is called Doppler effect. And this happens because of the source moving away or moving towards the observer. ठीक है, तो what you like, change in the frequency received by the observer due to the motion of the source is called Doppler effect. This much you can write. Now, the decrease in frequency results in the increase in wavelength. दोनों reciprocal होते हैं. Frequency तो I mean जो V is equal, C is equal to F lambda से हम बोल सकते हैं, which is called redshift. Increase in the wavelength is called redshift. Why it is called redshift? Because if you see the spectrum, ऐसा spectrum देखो, wave given Y O R, red की wavelength more होती है, violet की कम होती है, तो you are wavelength increasing means we are shifting towards red. So red shift, when wavelength increases, we call it red shift. So easy to remember. How it is easy to remember? देखो, if galaxy or star recedes means going away, then red shift. Red shift starts from alphabet R. Recedes also start from alphabet R. Similar to that, for red, it was rarer, medium is rarer. हमने पढ़ा पीछे, for red color, medium is rarer. Similarly, here also for receding, red shift, more wavelength is obtained. More wavelength means heading towards the red wavelength in the visible spectrum. And vice versa. If the source moves towards the observer, then wavelength received is smaller. So blue shift, blue की wavelength कम होती. Violet नहीं बोलते, that it is a combination of colors in it. उतनी clear spectrum नहीं मिलता हमें. So if some galaxy is coming towards Earth, so suppose you are observing yellow color की light दिख रही, after 2 months you see the green color, it means it is coming towards the Earth, going towards the violet, है ना. क्या spectrum है देखो, ठीक है, इस तरह से स्पेक्ट्रम है. सपोज पहले तुम्हें येलो मिल रही थी, बाद में थोड़े दिन के बाद ग्रीन दिखने लगा उसकी लाइट, तो इसका मतलब ब्लू की तरफ जा रहा है, ब्लू शिफ्ट है ना. और वायलेट से अगर सब ऑरेंज देखने लगी तो रेड की तरफ जा रहा है, रेड शिफ्ट, दूर जा रही है वो गैलेक्सी. ऑलराइट, so that's how it is there. Now same change in wavelength or frequency is obtained if observer is moving and source is at rest. ये सिमेट्रिक होता है because it is not depending upon the medium. तो सिमेट्रिक चेंज, अगर सोर्स को रोक दो, ऑब्जर्वर को उसी स्पीड से मूव करो, तो सेम इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड because light is independent of frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती. अनलाइक योर साउंड में अलग अलग रिजल्ट मिलते थे. सोर्स को रोको, ऑब्जर्वर को मूव करो, ऑब्जर्वर को रोको, सोर्स को मूव करो, सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन, सेम सिचुएशन में. फ्रीक्वेंसी चेंज वाज डिफरेंट देयर, बट हियर इट इज सेम चेंज. इसलिए चाहे वो सोर्स इज मूविंग, चाहे ऑब्जर्वर इज मूविंग, डजंट मैटर. न्यूमेरिकल में ऑब्जर्वर में भी मूविंग इन प्लेस ऑफ सोर्स गिवन हियर. ठीक है, सेम चेंज. ठीक है, यहाँ तक ओके. दिस मच इज देयर इन एनसीईआरटी बुक. उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं. Generally, one example I used to give, but which is not practically possible. Let me give you again that example. Suppose you are driving toward the signal, you find that signal is green, and you just go ahead, but traffic police will catch you. He may say no, it was red. You say no, I found it green.
तो both can be right. How? Traffic police is stationary. He will see red as a red. But if you are approaching very fast, there will be the increase of frequency. You will feel that right is green, light is green. Red color can be seen as a green if you approach very fast. But that much speed is not practically possible. Anyhow, if you are managed to drive at that fast speed, he will catch you for the over speeding. In both cases, you have to pay the penalty. But practically not possible. The source cannot move so fast that much color difference is obtained. You can find out how much speed with the speed observer should move to see that red color as a green color. The speed can be determined with the formula which we are going to discuss. All right, तो देखते हैं तो फार्मूला क्या है एनसीईआरटी बुक का. देखो एक फार्मूला दिया है, उसमें केमिकल भी है. Suppose this is the observer, this is the source is moving like this with the speed v, but उसका जो component है along the line joining, that matters. So v radial, how much is the speed along the line joining both is matters, that v radial is taken. So fractional change in the frequency is given by delta. Okay, यहाँ से देखो ये बाद में लिखना. If this much is given, okay, I will shift it this side. This is given. Fractional change in frequency upon actual frequency is v radial by c only magnitude. यहाँ पे माइनस साइन मैंने हटा दिया because we know कि रेड शिफ्ट होगा या वायलेट शिफ्ट कब होगा, we know that. So where v radial is the component of source velocity along the line joining the observer and source. ठीक है. और अगर हम v is equal to f lambda वाला स्पीड, अगर c is equal to f lambda को हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें डेल्टा लैम्डा बाई ये डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा के बराबर भी मिल जाता है. डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ. ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी, f and lambda are initial value, are actual or initial value. Actual value, initial or actual value. ठीक है. और ये कब वैलिड है? when the speed of source is very small as compared to c. c से बहुत कम है तब ये वैलिड है ये फार्मूला. v is the velocity of the source है, ये speed of source है. Can I write more clearly here? कब है ये वैलिड? जब v velocity of source is very small as compared to speed of light. तो उसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं. एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जांपल है. क्लियर? ये समझ में आ गया फार्मूला. v the speed of source and c the speed of light. v radial is the component of speed of source along the line joining both. All right, तो ये देखो ये क्वेश्चन है. What is the speed, with what speed a galaxy move with respect to us so that the sodium line at 589.0 nanometer is observed at 589.6 nanometer. Wavelength बढ़ गई देखो. It has gone initially this was this and it has received this much. So increasing wavelength increasing mean red shift. Galaxy is approaching to us. ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. ये वाला ये छोड़ दो. This you can just leave. तो ये फार्मूला ऊपर जो लिखा था वो, तो इसको ले लो ये दोनों को. कितनी वेवलेंथ बढ़ गई? 0.6. ठीक, एक मिनट जस्ट. हेलो हेलो. हाँ हाँ हाँ, मैं भी 7 बजे तक क्लास आता हूँ. 7 बजे के बाद है ना आप करना. ठीक ठीक, ओके. ओके
Are you there? Yes, sir. तीन जाने वाला होगा अभी, है ना? Let us complete this, then we'll. कितना मिनट है? 3. ओके ओके, देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो. चेंज ऑफ वेवलेंथ कितना हुआ? बाय सीइंग दिस 0.6 बढ़ गया ना, 0.6. 0.6 पुट कर दिया. इनिशियल इज 589 पुट कर दिया. वी रेडियल निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट. इफ यू सॉल्व इट तो इट कम्स कितना? 3.06 into 10⁵, which is 306 किलोमीटर पर सेकेंड. इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. ठीक है, कैन यू सी नाउ? Receding. Wavelength increasing means receding, going away from us. Receding. Wavelength is increasing. Clear? This is the only one more exercise question is there. We'll solve after the break. Then this topic will be over. We'll start the diffraction, new phenomena called diffraction. All right. Okay. Let us rejoin again.